So, students, welcome back again, and today we will discuss and explain about the new questions and new topics. And today's topic is what is the role of political parties in a democracy? There may be some other questions related to this topic also, means role of the political parties, importance of the political parties in democracy or in democratic country, right? The features or the role play by the political parties. Same as question may be also written as like write the functions of the political parties in a democracy or in the democratic country. So the answer of these questions will be same, means we have to write the functions or the importance of political parties or the working of political parties, and according to this question the answer will be given, and I am telling you the answer firstly at a glance in the points. Number one, there may be the various functions and work of the political parties that can be played in the democracy. So the first function or property, number one, the political parties contest elections. Number two, the political parties make the policies and programs. Number three, the political parties make the laws to run the country and to control the system. Point number four is political parties make the government and run the government. Next point number five, political parties also play the role of opposition in the government. Next, the political parties also try to give the shape of public opinion. And the last point, the political parties access to government machineries and welfare schemes. So these are the some points. ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप ये कह सकते हो कि विशेषताएं भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेमोक्रेसी में रोल भी है। तो राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र में अपना क्या रोल प्ले करती हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है और उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं। तो एक राजनीतिक पार्टी का कार्य जो मैंने अभी आपको बताया ये सभी हैं, और हम वन बाय वन एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। So the first point is political parties contest elections. So in most of the democratic countries there are two or more political parties who can try to make the government either in the central or state. So before contesting or participating any election, they have to declare their candidates for election. So some countries like USA, the members means the candidates can be elected by the people, but in our country like India, the candidates in the political parties are decided or chosen by the top leaders of the parties. मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे बड़ा और जो मुख्य कार्य है वो है चुनाव लड़ना, और चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद चुनाव जीतने की कोशिश करना और चुनाव जीत करके सरकार बनाने का दावा पेश करना। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का और सभी लोकतांत्रिक देशों में सबसे प्रमुख कार्य है, सबसे प्रमुख उनका उद्देश्य है, और आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा उनका रोल है, योगदान है डेमोक्रेसी में, कि राजनीतिक दल चुनाव में भागीदारी लेकर चुनाव जीतकर सत्ता में आने का और सरकार बनाने का प्रयास करती हैं। अब ये राजनीतिक दल किसी भी चुनाव में भाग लेने के लिए आप इंडिया में देखते हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी हो जिसको कॉमनली बोलते हैं, या बीजेपी हो भारतीय जनता पार्टी, या दूसरी तमाम पार्टियां हैं, ये पार्टियां लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में अपने अपने कैंडिडेट्स को उन लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों से मैदान में उतारते हैं जहां से उनको चुनाव लड़ना होता है। चुनाव के दौरान सभी कैंडिडेट आपने देखा होगा प्रचार प्रसार करते हैं अपनी पार्टी का, अपने उद्देश्यों का और स्वयं अपने व्यक्तित्व का। जो नेता जिस तरह का है, जनता के लिए जो भी योगदान करना चाहता है, वो जनता का जिस तरह से भला करना चाहता है उस तरह से प्रचार प्रसार करता है और जनता को खुश करके उनसे वोट लेने की मांग करता है। इलेक्शन में जीतने के बाद अगर किसी पार्टी का कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पा करके चुनाव जीत जाता है, तो इसी प्रकार से उसकी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट, अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो पूरे देश में जितने कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं वो सब एक साथ अगर बहुमत में होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है, जैसे लोकसभा के लिए 2/3 है ये आंकड़ा, अगर 2/3 या उससे अधिक बहुमत है उनके पास, इतने सारे कैंडिडेट पूरे देश में लोकसभा के सीटों पर जीत कर आए हैं, तो उनके पास केंद्र में सरकार बनाने का एक अधिकार मिल जाता है। और जैसा कि आपने देखा था कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने चुनाव में जीत हासिल करने के बाद 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर लिया था। लगभग 300 के ऊपर सीटें पूरे देश में उन्होंने हासिल की थी और इसके बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने ये जो एनडीए नामक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का जो गठबंधन है, उसके माध्यम से सरकार बनाई और वो सरकार अभी भी चल रही है, जिसके लीडर मैंने आपको बताया भी मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। उसके अतिरिक्त तमाम अनेक मंत्री और नेता उसमें इसी भारतीय जनता पार्टी के शामिल हैं, जिनको आप देखते हैं। तो ये काम होता है राजनीतिक दलों का। जो उनका प्रमुख काम है कि चुनाव प्रचार करके मतदान के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मत हासिल करना और अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में जीत दिला करके फिर सरकार बनाने का दावा पेश करना, और सरकार बन जाती है तो फिर उसे आगे चलाते रहना जब तक कि उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। ये राजनीतिक पार्टियों का सबसे प्रमुख कार्य है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट टॉपिक में हम अभी राजनीतिक पार्टियों के और भी फंक्शंस हैं, उनके और भी कार्य हैं जो वो पार्टियां करती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए और नोट्स फॉर्म करिए।